Hello everyone, my name is Harshita Niranjan and I am a volunteer of Applied Forensic Research Sciences, Criminology Department. Today I am here to show you all an experiment on comparison of documents. The aim of this experiment would be proving the authenticity of a questioned document, that is forgery, by comparison with submitted documents on the basis of individual and class characteristics. Now, further, I'll show you how the documents are compared and what is the procedure. So, what are the materials that we require? First is the question document and the second set of submitted documents, that is the requested and the collected documents, and a magnifying glass. Okay, so let's start with our video here. So, what I am going to do is compare the disputed and the collected documents. So I have this exhibit 1 and this exhibit 2. These are our disputed documents, that is question documents. So we have to check whether this signature is forged or this one. Like we have to check, if we say it in opposite way, that this one is the original signature or this one is the original signature. So the person whose signature this is, so I have taken one requested writing and one collected writing. So in this requested writing, I have asked the person whose signature this is, which is in question. I have asked him to produce the signature in front of me, and this I have collected from one of his previous documents that he doesn't know of, that he's and this he has just signed right now in front of me. So now we are going to compare the attributes. We are going to do it by naked eye. You can also use magnifying glass if the writing is small. I have just printed it out, so it's huge enough so I can see it. Now there are many advanced technique also, like VSC and ESD operator, but these are used in the cases of like ink detection, like if there is a change in ink, or if there is like indentation, obliteration, alteration, etc. But if we are to check the class and individual characteristics of the writing, we can use our naked eye and we do not need any operator. So okay, now let's start comparing. So first what we'll do is we'll compare the attributes of these signatures, because these we know that these are of the same person, and these are of we do not know that this one is original or this one is original. So one by one we are going to check every similarity or the difference between each and every letters of the word. Let's start with the letter R. So we can see that R in this and this and this. So this is as it is the requested writing, the person has written it in all consciousness. तो उसने क्या किया कि बहुत ही केयरफुली लिखा है, और इसमें क्योंकि ये पुराना सिग्नेचर है तो ये जल्दी जल्दी में किया गया है. एज वी कैन सी कि ये बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड जैसे ये है, और ये भी एकदम क्लियर है, बट ये वाला थोड़ा सा स्मज्ड है और बहुत ही क्विकली लिखा गया है. तो इसका आर और इसका आर और इसका जब हम चेक करते हैं तो ये वाला आर और ये वाला आर बहुत ही हमें क्लियर दिख रहा है. जैसे हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, वी कैन सी. बट ये वाला आर बहुत ही जल्दी लिखा गया है, तो बहुत ही इरेगुलर है. इसका ये लाइन जो है, ये स्ट्रोक, ये बहुत ही स्मॉल है, और यहाँ पे इसका ये कर्व जो आके यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये बहुत ही पॉइंटेड है. और इसमें भी ये थोड़ा सा इल डिफाइंड है. हम आर में और एस में ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ओवरलैप हो गए हैं. और मेन डिफरेंस देखो हमें इसमें कैसे दिखता है कि वी कैन सी दैट ये एस जो है और ये एस है, तो ये हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही क्लियरली विजिबल है. इसमें भी हमें एस का स्टार्टिंग पॉइंट क्लियरली विजिबल, क्योंकि ये मैग्नीफाइड जूम्ड इमेजेस हैं तो हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि हमें प्रेशर पॉइंट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं. इसमें हालांकि व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर नॉट वेरी श्योर दैट फ्रॉम वेयर दिस एस हैज़ बीन स्टार्टेड. एक्चुअली ये इतना स्मज हो गया है कि वी कैन नॉट इवन सी कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और ये ओवरलैप कर रहा है, ये आर का स्ट्रोक है या फिर ये एस का स्ट्रोक है, ये हम यहाँ पे नहीं क्लियरली बता पा रहे हैं. तो एक डिफरेंस हमें ये यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये और ये काफ़ी सिमिलर हैं. ये वाला इससे वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एक्चुअली सिमिलर, बट इट इज़ लाइक मोर सिमिलर दैन दिस वन. नाउ ये वाला एस, जो स्मॉल एस का जो फॉर्मेशन है इसमें और इसमें भी हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं.
और इसमें हमको थोड़ा सा इससे हम ये नहीं मैच कर पाएंगे, बट इसका कर्व और इसका कर्व बहुत ही सिमिलर है, जबकि इसका कर्व ज़रूर फॉर्मेशन हम वी कैन सी दैट दिस इज सेम, जैसे कि बन सब सेम रहे हैं, बट इसका ये वाला जो कर्वेचर है वो इसके रेशियो के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जबकि इन तीनों में वी कैन क्लियरली सी कि नीचे वाला जो कर्व है वो ऊपर वाले रेशियो से या तो सिमिलर है या फिर ज़्यादा है, जबकि इसमें इट्स टोटली ऑपोजिट। कमिंग ऑन आई में हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। इट्स द सेम फॉर्मेशन इन एवरी सिग्नेचर, but the difference in I we can see it's in the dot. One main signature difference is क्योंकि ये वाला disputed है, तो ये हमें नहीं पता कि ये जो accused या जो person है उसने बहुत ही जल्दी किया है या बहुत ही आराम से। ये वाला we know that he has done it carefully, and ये वाला क्योंकि ये यूजुअली ये पुराना डॉक्यूमेंट का है, तो इसमें हमें एक फ्लुएंसी एट्रीब्यूट दिखता है। जब हम आई का डॉट बनाते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज सेम सिमिलर आई, लाइक हमें या तो हम ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, बट जब हम बहुत ही फास्ट लिख रहे होते हैं या तो आई हमारा ऐसा हो जाता है या ऐसे स्मज हो जाता है। इसमें हमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है। इसमें अगर हम क्लियरली देखें, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है और ये भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, और इसमें ये एक इट्स मोर लाइक अ डॉट, एंड इन दिस ऑल्सो इट्स मोर लाइक अ डॉट। तो इस दोनों में हमें एक सिमिलैरिटी दिखती है और इसमें हमें सिमिलैरिटी इससे दिखती है, तो इसमें भी हम वी कैन नॉट बी 100% श्योर। कमिंग ऑन एन, द फॉर्मेशन इज़ द सेम इन 4 of them. सी लाइक ये इट्स कमिंग लाइक दिस, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड एन लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। वी कैन सी ये जो पॉइंट है एन का कर्वेचर, ये हमें बहुत ही क्लियरली चारों में दिखाई दे रहा है। ऑल्दो द डिफरेंस वी कैन सी इज दिस पॉइंट एग्जिस्ट्स इन दिस एंड दिस सिग्नेचर, but in this signature we cannot say because the N formation is almost same. There is a point here but there is not a point here. The curvature is present. So therefore these two signs are similar and these two signs are similar with respect to N. But one similarity which we can see is जो कि हमें इन सिग्नेचर्स में देखने को मिलती है इसके कंपैरिजन में, कि जब हम एन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो फॉर्मेशन इस एन का है, ये स्ट्रोक यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इसमें भी ये स्ट्रोक ऊपर से कनेक्ट हो रहा है, लाइक द एन इज़ कमिंग फ्रॉम अप, द फॉर्मेशन इज़ लाइक दिस, एंड इन दिस द स्ट्रोक इज़ कनेक्टिंग फ्रॉम हियर, या आई का स्ट्रोक एन से नीचे से कनेक्ट कर रहा है, जबकि इसमें क्योंकि ये स्मज्ड है इसमें हम ज़्यादा क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, बट इफ़ इसमें भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे वी सी इट क्लियरली, तो ये जो स्ट्रोक है ये ऐसे ऊपर कनेक्ट हो रहा है, नीचे से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ से इट्स कनेक्टिंग लाइक दिस, इट्स बट दिस वी कैन क्लियरली सी ये नीचे से ऊपर जा रहा है। बाकी सारे एन जो हमें सिमिलैरिटी दिखती है कि ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सो एक और हमें सिमिलैरिटी इस सिग्नेचर में ज़्यादा मिलती है कि ये एन का फॉर्मेशन इनमें सेम है। नाउ कमिंग ऑन जी में हमें दिख रहा है कि ये ऐसे कर्वेचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस। सी फर्स्ट द कर्वेचर यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, तो हमें इनमें जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ दिखते हैं, इनमें यहाँ दिखना है, और इसमें इट्स नॉट वेरी क्लियरली विजिबल, बट द स्ट्रोक यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है, तो वी कैन कंक्लूड कि ये प्रेशर पॉइंट यहाँ होगा। बट इसमें हमें प्रेशर पॉइंट बहुत ही क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसका ये बहुत ही फ्लुएंटली लिखा गया है और ये एकदम से नीचे जाके ऐसे कनेक्ट हो जाता है। इसका कर्वेचर जो है यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि ये जो नीचे वाला कर्वेचर है ये इसके रेशियो से ज़्यादा है। जैसे एस में हमने देखा था कि इसका जो नीचे का कर्वेचर है ऊपर से ज़्यादा है जबकि इसमें ऑपोजिट है, ऐसे ही इसमें वी कैन सी कि इसका कर्वेचर बहुत ही कम है, ये बहुत ही नैरो है, जबकि इन तीनों में जो जी नीचे से है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है।
तो ये तीनों जी जो है हमें सिमिलर दिखते हैं। एक और प्रेशर पॉइंट हमें जी में यहाँ देखने को मिलता है। वी कैन सी दैट द प्रेशर पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, बट इसमें हमें प्रेशर पॉइंट यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है। इवन अगर हमें दिख रहा है तो इसमें हम इसलिए भी डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसके जो कर्वेचर्स हैं वो नहीं मैच हो रहे हैं। ये वाला कर्वेचर इस लाइन से ऐसे फॉर्म हो रहा है एंड इस लाइन से भी ऐसे, तो ये जो अलाइनमेंट है ये ऐसे आ रहा है इन तीनों चीज़ में, इट्स कमिंग लाइक दिस। बट अगर आप इसमें अलाइनमेंट देखें तो ये कर्वेचर इट्स गोइंग बैक साइड एंड दिस वन इज़ गोइंग इन फॉरवर्ड, तो ये चीज़ भी हमें मैच इसमें नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें सिमिलैरिटी वी कैन क्लियरली सी। लास्ट लेटर इज़ आर एच। नाउ इन द एच ये द फॉर्मेशन इज़ गोइंग लाइक दिस, इन दिस ऑल्सो, इन दिस एंड इन दिस, लाइक हमें चारों में देखने को मिल रहा है कि फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से किया गया है। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंस, जैसे कि हमने एन में देखा था कि ये जो पॉइंट है इसमें वी कैन सी, लेकिन इसमें हमें पॉइंट नहीं दिखा था, इसमें कर्वेचर दिखा था। ऐसे ही अगर हम एच में देखें तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट दिखाई देता है। वी कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ पॉइंट हियर, इन दिस ऑल्सो इट्स नॉट क्लियरली विजिबल बट देयर इज़ मोर सिमिलैरिटी विद दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस इन केस ऑफ दिस, बिकॉज इसमें हमें क्लियरली कर्वेचर जैसे कि हमें एन में कर्वेचर दिखाता है यहाँ पे, वैसे ही हमें सेम जो एन का फॉर्मेशन है एक सिमिलर वे में हमें यहाँ पे एच का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। यानी कि ये जो एन है अगर ये इसका ये ऐसे इलोंगेट कर दे तो एक तरह से ये भी एक एच का फॉर्मेशन, तो इन दोनों का फॉर्मेशन सेम है। तो ऐसे ही जब इसमें एन और एच है तो इसमें भी फॉर्मेशन सेम है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं, ये एन में और एच में दोनों में प्रेजेंट है। ये वाला जो कर्वेचर है ये हमें चारों में देखने को मिलता है यूजुअली, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देन द लास्ट थिंग जिसमें हमें कंपेयर करनी है वो ये लाइन है। यूजुअली हम केसेस में जब सिग्नेचर्स ऐसे कंपेयर करते हैं तो हम ये लाइंस जो हैं वो छोड़ देते हैं, जबकि वी हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ़ इवन जैसे ये पॉइंट है यहाँ का, तो हम इसे ऐसे लीव आउट नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन द राइटिंग इन द मैटर। तो नाउ वील कंपेयर द लाइन्स, और इसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये देखिए, it's coming from downwards. In this also the pressure point is going like this. If you will zoom it, you can see that the pressure point is going like this. This one is quite opposite. इसमें जो प्रेशर पॉइंट है और यहाँ पे जो कनेक्ट स्टार्टिंग स्ट्रोक है ये ऊपर से आ रहा है एंड द लाइन इज़ गोइंग लाइक दिस। इन दिस ऑल्सो ऑल्दो इट इज़ रिटन इन फ्लुएंसी वी कैन सी दैट ये बहुत ही शॉर्ट लाइन है, बट ये स्टार्ट नीचे से ही हो रही है लाइक दिस वन। नाउ एंडिंग लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन जैसे स्टार्ट नीचे से हो रही थी बट एंड इट्स गोइंग लाइक दिस, ऊपर से एंड हो रही है। प्रेशर पॉइंट में हम क्लियरली देख सकते हैं। इन दिस ऑल्सो आप इसे आई नो इफ आई यू विल बी नॉट बी एबल टू सी इट वेरी क्लियरली, बट इफ़ यू लुक क्लोज इनफ यू कैन सी इसमें भी बहुत ही छोटा सा स्ट्रोक है, बट इट्स गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। इन दिस देयर इज़ नो स्ट्रोक प्रेजेंट। इनफैक्ट हमें बहुत ही छोटा सा प्रेशर पॉइंट यहाँ मिलता है और ये कंक्लूड हो जाती है लाइन। ये ऐसे ऊपर जा रही है बट इट्स नॉट एंडिंग लाइक दिस। इन दिस ऑल्सो if you will zoom it you will see it's very little stroke, but it's going like this and ending like this. In this there is no stroke present. So what we conclude is कि इसमें हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं इन सिग्नेचर्स में जो हमें इससे ज़्यादा सिमिलर मिले हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एस की स्टार्टिंग बिल्कुल विजिबल नहीं है, जबकि इसमें है, इसमें एस का फॉर्मेशन इट्स एन ऑपोजिट। यहाँ पे कर्वेचर्स का रेशियो मैच नहीं हो रहा है। आई में हमें इसमें जो हमारा डॉट है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई देता है। एन में हमें कर्वेचर में डिफरेंस दिखाई देता है, लाइक हाउ इट इज़ कनेक्टिंग, ये जो कनेक्टिंग स्ट्रोक है यहाँ पे। जी में हमें अलाइनमेंट में डिफरेंस दिखा एंड ये जो कर्वेचर है उसका रेशियो भी हमें यहाँ पे चेंज मिलता है। इससे कंपेयर इससे नहीं ये मैच कर रहा है बट इससे ये ज़्यादा मैच कर रहा है। एच में हमें सिमिलर, जैसे एन में हमें यहाँ पे पॉइंट की बजाय कर्वेचर देखने को मिला। इन दिस ऑल्सो वी कैन सी दैट ये इससे ज़्यादा मैच कर रहा है इज़ इन कंपेरिजन टू पॉइंट्स रादर दैन दिस। एंड एट द लास्ट
द लाइन, ये भी इसका जो फॉर्मेशन है ये इनसे, इस सिग्नेचर्स का इनसे मैच कर रहा है बट इससे नहीं कर रहा है। सो इन द एंड वी कैन कंक्लूड कि ये वाला जो हमारा सिग्नेचर है वो ओरिजिनल है एंड ये फोर्ज्ड है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी 100% रिजल्ट एक्यूरेसी होती है, राइटिंग में हम 100% रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं दे सकते, बट ऑल दो ऑन बेस्ड ऑफ 80 to 90%, जैसे कि हमने इसमें देखा, इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली, क्योंकि जैसे जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इफ़ दे प्रैक्टिस दे कैन ट्राई योर सिग्नेचर्स वेरी वेल, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेंस के बाद दे कैन एक्चुअली इमिटेट यू, but so we cannot say every time that if the thing is original or forged, but as we have started we can see that थोड़ी डिफरेंस मिलती हैं। नाउ दीज वर द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जिस बेसिस पे। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि ये जो सेम पर्सन के सिग्नेचर्स हैं ये दोनों ही आपस में सेम नहीं हैं। इसमें जो फॉर्मेशंस हैं, ये जैसे एस है, आर है, इसमें आर का फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर है और इसमें आर थोड़ा सा फ्लुएंसी में लिखा गया है, तो ये जो यहाँ पे स्ट्रोक है ये बहुत ही स्मॉल है, इसका रेशियो सेम नहीं है। बट जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में सेम रहते हैं, बट इट डजेंट गिव यू दी एक्यूरेट 100% एग्जैक्ट सेम कॉपी अगर आप अपना ही सेम मैटर बाद में लिखते हैं। तो ये भी एक ऑथेंटिसिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की, राइट हैंड राइटिंग की, कि आप सेम अपनी हैंड राइटिंग को कॉपी नहीं कर सकते। और अगर इफ़ इट इज़ 100% एग्जैक्ट कॉपी देन इट इज़ 100% श्योर दैट इट्स forgery, that is we know that traced or lifted forgery, because we cannot say 100% हमें results नहीं accurate videos you can connect on our official website. This was the basic comparison जिससे हम we can conclude कि हमें अगर फोर्जरी डिटेक्ट करनी हो तो हम नेकेड आई से कैसे कंपैरिजन करके एट्रीब्यूट्स को कैसे कंपेयर करके वी कैन सी कि ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या फिर फोर्ज्ड हैं। Thank you everyone for watching our video, and for more updates and more practical videos you can connect on our official website. Please like, share and subscribe our YouTube channel.